Good morning friends. Class 11 Physics Dimensional Formula. First, a dimensional formula in physics important because using the dimensional formula we can solve the many problem of physics. So here, first of all we see the what is meaning of the dimensional formula. Now here you see sometimes physical quantity. So there are many physical quantity. How many physical quantity? Already we know that physical quantity. A quantity we can measure directly is called the physical quantity. Like here length. कई बार हम लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, कई बार इसके लिए हम रेडियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं. डायमीटर, हाँ डायमीटर के बाद मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, आर्क भी कह सकते हैं. यहाँ कई वर्ड हम यूज कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट तो इस डिनोटेड बाय, सो मीन्स लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस, डायमीटर, आर्क, डिस्प्लेसमेंट मेजर बाय मीन्स डिनोटेड बाय एल, कैपिटल लेटर एल. सेकेंड वन मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. टाइम इज डिनोटेड बाय capital T letter. Now electric current denoted by ampere. Fifth one thermodynamic temperature means temperature. Temperature sometimes we denoted by K और कई बुकों के अंदर थीटा भी यूज किया जाता है. सिक्स नंबर हम बोलते हैं luminous intensity. Luminous intensity तो it's denoted by the CD. 7 amount of substance denoted by mole. So dimensional formula means a length represented by the L, mass represented by the capital M, time represented by the T, electric current represented by the capital letter A, temperature sometimes measured by the K, sometimes the theta, luminous intensity is denoted by CD, and the amount of the substance are denoted by the mole. But in the practical life there are these four quantities important in the dimensional formula. So how can we write the dimensional formula for the different quantity? तो here we see the one by one. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जी और नीट के अंदर हर साल 2 क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला के ही आते हैं. और 2 क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स मतलब आपको मेरिट में से भी ला भी सकता है और मेरिट में से निकल भी सकता है. तो यह फ्रेंड्स हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सी डायमेंशनल फॉर्मूला द मास. तो यू रिमेंबर मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ इज डिनोटेड बाय L, mass denoted by M, time denoted by T. अब ये तीनों फ्रेंड है, जहां भी जाते वो साथ में जाते, तो यहां हम तीनों को साथ में रखेंगे. तो मास के लिए क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा मास 1. अब यहां आप देख सकते हैं मास एक ही बार है तो M1 लिख सकते हैं. आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैंने अब बोला तीनों सेम होते साथ में चलते, तो मास एक बार है पर यहां लेंथ नहीं है तो 0, टाइम नहीं है तो 0. यहाँ आप देख सकते हैं L0 का मतलब 1 होता है, T0 का मतलब भी 1 होता है. अगर आप लिखो या ना लिखो तो बोथ आर करेक्ट. सेकेंड वन अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज डिनोटेड बाय मीन्स L. तो हियर वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L1, अदरवाइज M0, L1 एंड T0. अब ऐसे भी लिख सकते हैं. कई लोग ऐसा भी बोलते हैं अकेला आप M लिखो तो भी चलेगा, या L. थर्ड वन इज टाइम. तो टाइम इज डिनोटेड बाय, तो टाइम के लिए हम T लिख सकते हैं, T अकेला लिखो या T1 लिखो या M0, L0 एंड T1. नाउ यू आर द फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय अदरवाइज A1, अदरवाइज M0, L0, T0 और A1, पर एम्पियर के लिए हम A1 ही लिखेंगे. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मास डिनोटेड बाय M, length denoted by L,
time denoted by T, and the electric current is denoted by A, is called this formula is called the dimensional formula. Means what is meaning of the dimensional formula? Mass denoted by M, length denoted by L, time denoted by T, electric current denoted by A, thermodynamic temperature denoted by K, luminous intensity denoted by CD, and the amount of substance denoted by ML, means MOL. So this representation of the MLTI is called the dimensional formula. Sometimes some people are use the MLT form. कई लोग उसको बोलते हैं कि MLT फॉर्म, MLT मतलब सब में ML और T आता है इसलिए MLT भी बोलते हैं. तो MLT form otherwise called the dimensional formula. Now here we see the some dimensional formula other physical quantity. Now you see here we take fifth one is area. Dimensional formula area is denoted by so length into breadth. So friends मैंने आपको भी बताया था कि you remember length, distance, displacement, arc, diameter, radius, length, height, breadth, depth, height या ब्रेथ भी लिख सकते हैं. तो इन सब के लिए मैं एक ही वर्ड लिखूंगा जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर एल. ओके, तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है, इसको ऐसे ब्रैकेट करते हैं, दिस टाइप ब्रैकेट. लेंथ डिनोटेड बाय, तो लेंथ डिनोटेड बाय एल, सो L1 इनटू ब्रेथ डिनोटेड बाय, सो ब्रेथ मीन्स मैं लिख सकता हूँ ब्रेथ के लिए क्या होगा, तो L1. तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L2 होगा. अगर आपको तीनों का साथ में लिखना है तो भी चलेगा, M0, L2 एंड T0 बिकॉज द T इज एप्सन एंड M इज इक्वल एप्सन. मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एरिया. पर इतना याद रखना, रिमेंबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसी द मेथड ऐसे लिखा जाता है. अब मैं लेता हूँ कि हमने एरिया लिया, अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम क्या होगा. तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखे तो यह बच्चों में आप साथ में मेरे लिखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से आपको जल्दी आ जाएगा. वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय V. वॉल्यूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो we want to write the dimensional formula, so write in this way: length denoted by L1 into breadth denoted by L1 and height also denoted by also L. So it's called the L cube. Otherwise write down the M naught, L cube and T0. Now here the 7-1 is momentum. Momentum is P is denoted by mass into velocity. पर यहाँ ये बाद में थोड़ी देर के बाद बता दूँ, मैं 7 नंबर पहले स्पीड की बात करता हूँ. तो when we write the in chapters, तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सिमिलर. अभी के लिए आप इतना ही समझो कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही है. ओके, अभी सेम समझो, बाद में हम समझेंगे कि चैप्टर 3 के अंदर स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंस है. तो इज डिनोटेड बाय V. तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हियर द डिस्टेंस मीन्स, तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय L1 और टाइम मेजर बाय T1. तो T को हम ऊपर ले जाते तो L1 और T-1. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L1 T-1. कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं LT-1. 1 पावर ना लिखो चलेगा. 8 नंबर एक्सलरेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सलरेशन? एक्सलरेशन इज डिनोटेड बाय A. इसको हम ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम. अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम. So therefore distance upon time square. Dimension formula, so L1 T अपॉन में मतलब T2. अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो L1 T-2, बट ये मास इज एब्सेंट, सो M0. अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं LT-2. यू कैन राइट एनी वे.
ओके, देन नेक्स्ट वन इज हम बात करते थे मोमेंटम. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. सो P इज इक्वल टू mv. अब रिमेंबर ये जो मोमेंटम है इसके अंदर मास इनटू वेलोसिटी है. तो मास का तो हम जानते हैं, पर वेलोसिटी क्या है? तो व्हेन वी राइट द एनी डायमेंशनल फॉर्मूला यू शुड कन्वर्ट द ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन द फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स fundamental physical quantity, means every a value convert in a mass, length, time, electric current in this way. Okay, so here the velocity is not a fundamental, so first is convert in a fundamental. Mass is the fundamental, but here the v means velocity. Velocity means distance upon time is the fundamental. मतलब इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दो, फंडामेंटल क्वांटिटी में. नाउ हियर वी राइट द मास इज डिनोटेड बाय m, पर एक बार है तो m1, लेंथ l1 अपॉन टाइम t1. सो देयरफॉर m1 l1 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा t-1. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम. तो ये फॉर्मूले शायद आप पढ़े थे स्टैंडर्ड 9 में. कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आप नहीं पढ़ेंगे, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे आप चैप्टर में पढ़ेंगे तब आएगा. तो मान लो कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो अभी नहीं जानते, उनके बारे में आप नहीं जानते, तो उनके डायमेंशनल फार्मूला अभी नहीं पूछ सकते, पर जब हम 11, 12 पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले आ जाएंगे. तो आपको ये सब रट्टा मारने की जरूरत है. यू शुड रिमेंबर ओनली फॉर द व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. सपोज 10 नंबर में बात करूंगा, तो 10 नंबर के अंदर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी. अब ये फ्रीक्वेंसी क्या हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इज डिनोटेड बाय f, या कई लोग ऐसा बोलते हैं म्यू. फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 अपॉन टाइम. सो डायमेंशनल फॉर्मूला 1, टाइम इज t1, तो हम लिख सकते हैं -1. अगर आपको m और l t में फॉर्म में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं mlt फॉर्म, m0 l0 t-1. 11 में बात करता हूँ कि फोर्स क्या होता है. तो फोर्स इज डिनोटेड बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. अब शायद प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फोर्स. सो F इज इक्वल टू ma. तो कन्वर्ट इन ए, अभी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज व्हेन वी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला यू शुड कन्वर्ट द ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन द फंडामेंटल. मास फंडामेंटल, बट एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी. एक्सेलरेशन मीन्स अभी हम पढ़े डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. तो यह बच्चों आप थोड़े से याद रख लो कि स्पीड है या वेलोसिटी है. तो स्पीड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे आप जानते भी होंगे. एक्सेलरेशन है इज डिनोटेड बाय a इज कॉल्ड द डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. अदर वन वेलोसिटी अपॉन टाइम. थर्ड वन इज मोमेंटम. मोमेंटम डिनोटेड बाय p इज इक्वल टू mv. फोर्थ वन हम बात करते हैं फोर्स क्या है. सो फोर्स इक्वल टू f इक्वल टू ma. सपोज 6 वन हम बात करेंगे, जैसे जैसे मैं बात करूंगा वैसे हम आगे बढ़ते हैं. तो फोर्स मतलब a मतलब आप जानते हैं मतलब एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर. राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑल द दिस डिस्टेंस, टाइम एंड द मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. सो राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला m1, l1 and t2. So therefore m1 l1 t-2. Okay, this is the dimensional formula of the force. 12 नंबर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स. तो लिखा कई बार ऐसा बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स. इम्पल्स ऑफ फोर्स अब ये क्या है तो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. अभी देख लेते हैं कि इम्पल्स ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम, स्मॉल टाइम. स्मॉल टाइम मतलब टी लिखो. फोर्स का तो आप जानते थे क्या था ऊपर डायमेंशनल फॉर्मूला, तो F इज इक्वल ma और इनटू टी मतलब टाइम. अभी हमने लिखा मास. एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ए मीन्स एक्सेलरेशन, इनटू ये टाइम आया. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एक टाइम कट जाएगा, तो एक टाइम गया तो आप क्या लिख सकते हैं m1 इंटू l1 अपॉन क्या होगा t1. सो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 l1 t-1 है. ओके बच्चों, एक और शॉर्टकट लिखते हैं. कैसे लिखते हैं कि यहाँ मैं ऐसा कर देता हूँ, फोर्स का याद रख लेता हूँ. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया.
तो उसी की हम बात करते हैं। तो उसी प्रकार मुझे लिखना होगा, सपोज इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना हो तो इम्पल्स ऑफ फोर्स, सो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का हम ऐसा करते हैं, याद रख लेते हैं, m1 L1 T-2, कई लोग ऐसा बोलते हैं 112, तो यहाँ m1 L1 T-2 इसको 12 बोलते हैं, इनटू टाइम मीन्स तो T1। अब देखो तो m1 L1 ये 2 में से ये T है ये भी T है, तो कितना होगा -1 होगा, -2 और -2 + 1, आंसर इज -1। तो आ गया। तो डायरी के फॉर्मूला इतना लंबा आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यू रिमेंबर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ जिससे आपको याद रहे, m1 L1 T-2, रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लेते हैं हम प्रेशर। प्रेशर मीन्स तो फोर्स अपॉन एरिया, इट्स कॉल्ड द P, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। हम बोलते थे फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड द प्रेशर। सो प्रेशर की मैं बात करूंगा, तो प्रेशर का क्या होगा, सो प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन E। अभी मैंने आपको बोला कि आप फोर्स का फॉर्मूला याद रख लो, क्या था, m1 L1 T-2 अपॉन एरिया क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब L1 इंटू L1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L1 इंटू L1, सो L1 गए, सो देयर फॉर m1, ये L ऊपर जाएगा तो -1 और T-2। देन नेक्स्ट वन प्रेशर, पावर लेते चलो, पावर P इज इक्वल टू W अपॉन Q, पर उसके पहले मैं ले लेता हूँ वर्क। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्क, हियर वर्क otherwise called the energy, otherwise called the kinetic energy या potential energy, कोई भी एनर्जी वर्ड आती होगा, is denoted by W otherwise the E and is called the formula is FD, force into displacement is called the energy या work। so work otherwise the energy FD, W is equal to FD लिखते हैं। here the F means, तो मैंने याद रखने को बोला है, कौन है, m1 L1 T-2 and D means displacement, displacement means L1, so m1 L2 T-2, this is the dimensional formula of the work, otherwise energy, otherwise kinetic energy, otherwise potential energy। now we take power, power also is called the P, work upon time, आप शायद 9th में पढ़ चुके थे, वर्क मीन्स तो FD अपॉन T। मैंने बोल दिया कि FD का तो आप यह भी याद रख लो, m1 L1 T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का L1 अपॉन टाइम का क्या होगा, T1 लिख सकते हैं, तो T1। ओके, अब यह क्या होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ m1 L कितने हो जाएंगे, तो L2 एंड T-2 अपॉन T1, 80 ऊपर जाए तो m1 L2 T-3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, यू रिमेंबर। कई लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वर्क का डायरेक्ट लिखो अपॉन T, मतलब इसमें से एक T कम कर दो तो भी डायरेक्ट आ जाएगा, तो भी आप ऐसे ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो एक और बढ़ जाएगा, तो ऐसे हम भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों सारी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है वो लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा डिटेल में सबसे। मान लो इलेक्ट्रिक करंट हो तो, सो इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, सो इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर। आप A1 लिख दो या A लिखो, या MLD फॉर्म में लिखना है तो M0 L0 L0 T0 और A1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यह हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यू ऑलरेडी लर्न इन द स्टैंडर्ड 10 इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ऐसा कुछ लिखते थे Q इज इक्वल टू IT, इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय द Q। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का क्या होगा, तो IT, Q इज इक्वल IT। यहाँ डायमेंशनल फॉर्म लिखना है तो मैंने बोला ब्रैकेट में लिखो,
इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर A1 और टाइम क्या होगा T1। सो डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1 लिखो तो भी चलेगा, MLT फॉर्म में लिखना हो तो 0 L 0 T1 एंड A1 होगा। ओके, उसके बाद बच्चों आप ओम्स लॉ पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखते हैं, तो वही बात थोड़ी हम देख लेते हैं। तो या सम इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो यह मैं बात करता हूँ, पहले हम बात कर देते हैं कि चार्ज का लिखा, इलेक्ट्रिक करंट का लिखा, अब मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R। तो आप लिखते थे V इज इक्वल टू आर आई, सो R इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिखेंगे V अपॉन आई। पर मैं ये समझाने से पहले बच्चों आपको एक चीज सिखा देता हूँ, V क्या है। तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अदरवाइज कॉल द वोल्टेज या पोटेंशियल। आप 10th में पढ़े थे पोटेंशियल। सो पोटेंशियल मतलब क्या बोलते थे आप, तो वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क के लिए मैंने आपको बता दिया बच्चों क्या बोलते हैं FD, और चार्ज के लिए क्या लिखते थे IT, Q इज इक्वल टू IT। तो आप बच्चों इलेक्ट्रिक के लिए थोड़े फॉर्मूले ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ Q मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो IT कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, और V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम बोलेंगे वर्क अपॉन चार्ज, मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज। वी वांट टू डायमेंशनल फॉर्मूला, सो V इन ब्रैकेट F का मैंने बता चुका हूँ का M1 लिखिए आप, L1 T-2 इंटू D मतलब डिस्प्लेसमेंट L1, या I मतलब इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और T मतलब टाइम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ M1, L कितने हो गए हमारे सामने, तो L2 and T-3 and A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाउ फ्रेंड्स वी राइट डाउन अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। Resistance is denoted by, you know that the resistance, what is meaning of the resistance, you already learned in the standard 10, when the electric current flow through the any conductor and the property of the conductor oppose the electric current, means resistance means oppose. A property of the material which oppose the electric current is called the resistance. And according to Ohm's law, Ohm's give the relation between the V is equal to Ri. So therefore R is equal to V upon I. Now we want to write down dimensional formula of the R. So V means is called the potential difference. Potential already we derived this. पर आपको मान लो ये याद ना हो तो you remember this formula, work upon charge. So W upon Q divided by I. So therefore work upon Q and IT ऐसा होगा ना, W upon Q I, and therefore work means FD. Therefore Q means IT, Q means IT and I. Dimensional formula of the force M1 L1 T-2, D means distance L1, I means electric current A1, T means time T1, electric current A1. Dimensional formula M1 L into L L2, and therefore T ऊपर जाएगा तो -3 and A-2. This is the dimensional formula of resistance. Dimensional formula of the resistance. बच्चों ये JEE में आ चुका है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, 2014 में शायद आया था। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस समझते हैं, Q इज इक्वल टू CV इसका फॉर्मूला है। हम बोलते थे, मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, Q इज इक्वल टू CV रामन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे यहाँ। तो C इज कॉल्ड अ Q अपॉन V एंड C दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी चार्ज डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस आता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कितना चार्ज स्टोर करता है तो उसको कैपेसिटेंस से बताया जाता है, वो उसका यूनिट होता है फैराडे, पर आपको वो 12th में आता है अभी नहीं। बच्चों Q इज इक्वल टू, तो Q की जगह मैं लिख सकता IT, और ये V क्या है तो पोटेंशियल, फिर से तो W अपॉन Q। सो W अपॉन Q
Q को हम डिवीजन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सो IT upon W and Q. Also Q is equal to IT. Q means IT divided by W means FD. Dimension formula A1 T1 A1 T1. Dimension formula for M1 L1 T minus 2 into displacement means L1. So therefore M minus 1 L minus 2 T, तो माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 1 मतलब 2 3 और 4 एंड ए 2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर. ये भी बच्चों नीट में आ चुका है. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी. तो नाउ यू अंडरस्टूड डायमेंशनल फार्मूला. देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, पर जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर देखेंगे तो इतने आपको फार्मूले याद रखने हैं. मतलब आप जो पढ़े उसके आधार पर हम डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी आपके सामने फार्मूला, तो यू कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी. हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला? बट हियर द वी सी द सम पॉइंट्स are not used in our daily life, but they are the important. A dimensional formula of the we write down प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. किसी को लगे चलो प्लेन एंगल का क्या होगा, सो प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल को हम पढ़े थे आर्क अपॉन रेडियस. सो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेन एंगल, तो आप जानते हैं आर्क तो L1 होता है, आर्क मीन्स L1 एंड रेडियस मीन्स ऑल्सो L1. L1 गए, कुछ नहीं बचा, 1 बचा. 1 का मतलब क्या होता है, तो M0 L0 और T0 कोई है ही नहीं बच्चा. सॉलिड एंगल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, सो इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा. आप जानते हैं एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड एंगल. एरिया, सो एरिया इज डिनोटेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ. और रेडियस, तो रेडियस 2 बार है, तो रेडियस इनटू रेडियस लिख सकते हैं. लेंथ L1, breadth also L1, radius L1 and also radius L1. So L1 गए L2. So 1 means M0, L0 and T0. This is the dimensional formula of the solid angle and the plane angle, because they are the angle and angle has the no dimensional formula. तो सम क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते, तो ना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयर इज द नो डायमेंशनल लिस्ट इज कॉल्ड द डायमेंशनल लिस्ट. थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही रखते हैं.